Hello everyone. In this lecture, we will discuss carry look ahead adder. In the last lecture, we have discussed serial and parallel adder. The problem with the parallel adder is that there is a propagation delay in parallel adder. So, we have designed carry look ahead adder to improve the speed. A carry look ahead adder is fast adder. It improves speed by reducing the amount of time required for carry bits. Carry look ahead operation depends on two things: calculating each digit position, whether that position is going to propagate a carry or not, whether it is going to propagate a carry with 1 which is coming from the right. Combining these calculated values to be able to deduce quickly whether for each group of digit that group is going to propagate a carry that comes in from the right. We can understand the operation of CLA carry look ahead adder through a full adder. This is a full adder circuit. Let's look at the truth table for the full adder. Here we have taken two inputs A, B, and the third input can be considered as input carry, and two outputs are sum and carry out. You can see in the table we have categorized this truth table into the three parts: no carry generation, carry propagation, and carry generation. First, when both A and B are 0, 0, sum is 0 and output carry is also 0. This is the actual table of full adder, बट हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चेक कर रहे हैं. ठीक है, हम दोनों केस में चेक करें. जहाँ पे जो रेड वाला पार्ट हमें दिख रहा है, व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0, whatever the C in 0 or 1, C out is always 0. So we can say that there is no carry generation in this case when both the inputs are 0. So no carry generation, C out is equal to 0. Let's check the row number 2, 3, 4 and 5, that is yellow part in the truth table. When A and B both are different, ठीक है, let's check here. When A is 0 and B is 1, C in is 0, we get C out 0. When A is 0, carry is 1. ठीक है, this starting two cases are for A 0, B 1. You can see now in second case, when C in is 1, C out is also 1. What is happening here? When both the inputs are different, 0, 1, A is 0 and B is 1, whatever is the input carry, output carry is propagated. So we can say
This is carry propagation. C out equals to C in. Also check in row number 4 and 5. When A equals to 1 and B equals to 0, whatever the value of C in 0 or 1, we are getting as it is 0 and 1 in the C out. Again we can say there is a carry propagation, that is C out is equals to C in. In last two rows, row number 6 and 7, when both the inputs are same, A equals to 1 and B equals to 1, you can see here in both cases when C in equals to 0 and C in equals to 1, in both cases output is high. So we can say the carry is generated, carry generation. C out is always equals to 1 in last two rows when both the inputs are 1 and both the inputs are different, whatever value of C in is there, C out will be exactly same. So we can say carry propagation is when C in equals to C out or A and B are different, and carry generation is there when both the inputs are same. Now from the truth table, let's check for the expression for carry generation and propagation. From the truth table we can see, let's check the row number 6 and 7. Let's check the row number 6 and 7. Here, what is the minterm over here? Minterm, when both A and B are 1, we can say minterm will be, for carry generation, it will be A dot B. So, from the truth table, carry generation in row 6 and 7 is given by G equals to AI dot BI. G equals to AI dot BI. This. We can check it from row number 6 and 7 when the C out is always high. Similarly, the carry propagation, row number 2nd, 3rd, 4th and 5th. From row number 2nd, 3rd, 4th and 5th, we can check, we can see when A equals to 1 or B equals to 0 or vice versa. What we can write the expression for this case? In this case, we are checking for row number 2 to 5. ठीक है, when these two occurs or these two occurs, right? When A equals to 0 and B equals to 1 or A equals to 1, B equals to 0. In both cases there is a carry propagation. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा इस वाले केस के लिए हमें मिनटर्म मिलेगा, रो नंबर 2 और 3 से हमें मिलेगा A डैश B, यहाँ से हमें मिलेगा A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हमें मिलेगा A B डैश. तो यहाँ से अगर हम कैरी प्रोपेगेशन लें तो हमें इनको ऐड करना होगा. तो कैरी प्रोपेगेशन को हम PI से डिनोट कर रहे हैं, तो PI इक्वल्स टू A डैश B प्लस AB डैश, where this expression is for XOR gate. So we can write it as A XOR B. PI equals to A XOR B. So we have written PI equals to AI XOR BI. We are taking I for ith stages. If we are counting 4 bit, then A1, A2, A3, A4 like this. So GI, what is GI? GI is also known as carry generated signal, and PI is known as carry propagate signal.
P for propagate, G for generate, carry generate and carry propagate signal. So the new expression for output of sum and carry of this full adder will be SI equals to whatever is happening here. इस A XOR B को हम क्या लिख पा रहे हैं, PI लिख पा रहे हैं. दैट्स वाई इस XOR गेट के बाद हमने क्या यूज़ किया, PI यूज़ किया, राइट. और AI डॉट BI को हम लिख रहे हैं GI. सो AI डॉट BI किस में जा रहा है, एंड गेट का आउटपुट है, दैट इज PI एंड GI. एंड दिस इज SI एंड दिस इज CI प्लस 1, दैट इज आउटपुट कैरी. सो SI इज सम आउटपुट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम देख सकते हैं सम आउटपुट में क्या क्या जा रहा है इस XOR गेट में. PI है एक इनपुट और दूसरा इनपुट है CI. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया PI प्लस CI माइनस 1. नाउ व्हाट इज CI प्लस 1? ये जो लास्ट स्टेज पे हम कैरी आउटपुट देख रहे हैं, ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा this GI and PI CI. इस एंड गेट का ये वाले एंड गेट का आउटपुट है PI CI. ठीक है, PI CI और यहाँ से हमें मिल रहा है GI. तो इस EI प्लस 1 हमारा हो जाएगा GI प्लस PI CI. Now from this expression of CI plus 1 equals to GI plus PI CI, we can find the carry. ठीक है, we will find the carry. Actually in CLA is used to predict the carry. ठीक है, here what we are doing, we are going to predict the carry before actually कैलकुलेशन हुआ नहीं है, बट उसके पहले ही हम कैरी को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि एक्चुअली अगर हमारे कॉम्बिनेशन ये होंगे तो उस केस में हमारा कैरी आउटपुट क्या होगा. तो हम कैरी को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं. यहाँ पे हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमने पैरेलल एडर देखा था, इन दैट केस द आउटपुट ऑफ फर्स्ट कैरी is connected to output carry of one full adder is connected to the input of another full adder. ठीक है, इस वे में कैरी जो था वो कनेक्ट होता जा रहा था एंड देयर इज अ प्रोपेगेशन डिले इन ईच फुल एडर. ठीक है, हर एक फुल एडर का एक प्रोपेगेशन डिले था. उस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, स्पीड स्लो हो सकती थी. प्रोपेगेशन डिले सम अप होके जब फाइनल आंसर हम फाइंड आउट कर रहे थे तो उस केस में हमारा जो प्रोपेगेशन डिले है वो कंप्लीट, अगर हम 4 बिट का लेंगे तो 4 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई होकर हमें मिल रहा था. तो उतना ज़्यादा प्रोपेगेशन डिले उसमें आ रहा था. ठीक है, तो हमने स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कैरी जनरेटर ही डिज़ाइन कर लिया. तो अब अभी तक हमने क्या किया, हमने ट्रुथ टेबल, फुल एडर का ट्रुथ टेबल निकाल के हमने एक्सप्रेशन निकाला कैरी के लिए. अब इस कैरी के एक्सप्रेशन से हम डिफरेंट स्टेजेस के लिए आउटपुट कैरी जनरेट करके रखेंगे. ठीक है, तो ये कैरी जनरेटर हम ऑलरेडी यहाँ पे डिज़ाइन करके रख रहे हैं, हम प्रेडिक्ट करके रख रहे हैं कि इन कॉम्बिनेशंस पे ए और बी इनपुट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे हमारा आउटपुट कैरी क्या जनरेट होगा. ठीक है, तो हमारा जो CI इक्वल्स टू GI प्लस PI CI माइनस 1 का जो एक्सप्रेशन था, हम उसके बेसिस पे यहाँ पे कैरी जनरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा है, अगर हम I की वैल्यू इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो हमारी CI की इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन में अगर हम I को 0 रखें, एक बार I को 1 रखें, फिर I को 2 रखें, फिर I को 3 रखें. ठीक है, हम डिफरेंट रख के देखेंगे. हमारा एक्सप्रेशन था CI प्लस 1 इक्वल्स टू GI प्लस PI
सी आई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो उससे हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। जब हमने आई इक्वल्स टू 0 पुट किया तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिला C1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा G0 प्लस P0 C0। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने पुट किया i इक्वल्स टू 1। जब i इक्वल्स टू 1 पुट किया तो i प्लस 1 हमारा हो गया 2, तो C2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा i क्या है 1 है, तो हमने लिखा G1 प्लस P1 C1। ठीक है, प्लस P1 C1। अब हम क्या करें, वी हैव C1 इक्वल्स टू G0 प्लस P0 C0, तो हमें C1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें इस P1 C1 में। इस C1 में हमने जब C1 की वैल्यू हमने जब यहाँ एक्सप्रेशन में पुट करा और इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0। राइट, नेक्स्ट हम क्या करें, i इक्वल्स टू पुट कर लें 2, तो i इक्वल्स टू 2 पुट करने पे मुझे मिलेगा C3 इक्वल्स टू, यहाँ से मुझे मिला G2 प्लस P2 C2। ठीक है, तो अब हमारे पास P2 G2 P2 C2 है, तो C2 की वैल्यू अब हमारे पास यहाँ से हम ये वाली पुट कर देंगे। ठीक है, इसको हमने G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0 को C2 की जगह पे यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, C2 को इससे रिप्लेस कर दिया, तो अब हम जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट हम क्या करें, हम i की वैल्यू को रख लें 3। जब i की वैल्यू 3 रखी तो ये हमारा हो जाएगा C4 इक्वल्स टू G3 प्लस P3 C3। ठीक है, इसी तरह से अब जो C3 दिख रहा है हमें यहाँ पे, इस C3 की जगह पे हम ये वाला एक्सप्रेशन रख लें। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जब हमने पुट किया यहाँ पे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन C4 के लिए मिलेगा G3 प्लस P3 G2 प्लस P3 P2 G1 प्लस P3 P2 P1 G0 प्लस P3 P2 P1 P0 C0। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमें 4 अलग अलग स्टेजेस के लिए हमें कैरी हमने प्रेडिक्ट कर लिया। अब हमने C1 C2 C3 C4 फाइंड आउट कर लिए थे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम यहाँ पे C1 C2 C3 C4 के लिए कैरी जनरेटर हम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा C1 C2 C3 C4। ठीक है, C1 हो जाएगा, इधर से C2 मिल जाएगा, इधर C3 मिल जाएगा, इधर C4 मिल जाएगा, और जो जो हमारी टर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट थी उन सब को हम क्या कर रहे हैं, हम जो इसके पहले हमने एक्सप्रेशन निकाला है C1 का, तो C1 के एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या था, हमारे पास था G0 प्लस P0 C0। ठीक है, तो हमने वही किया है, हमने यहाँ से ले लिया G0, हमने ये नीचे वाले एंड गेट में हमने ले लिया PI और CI। i की वैल्यू अभी हमने क्योंकि 0 रखी है तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, P0 G0 और C0 हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा CI हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, G0 C1 इक्वल्स टू G0 प्लस P0 C0। ठीक है, और ये ही सारे एक्सप्रेशन, ये जितने भी एक्सप्रेशन हमारे आए हैं, C2 इक्वल्स टू G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0, जैसा मैंने आपको लॉजिक डिज़ाइन करते टाइम बताया था, बस हमें यही करना है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे C1 C2 C3 को डिज़ाइन कर रहे हैं, C1 C2 C3 और C4 के लिए हम लॉजिक डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा लॉजिक डिज़ाइन करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक बना के इन लॉजिक गेट्स में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे C1 है, ये C1 की वैल्यू थी G0 प्लस P0 C0, तो हम क्या क्या करेंगे, C1 के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, कैंड गेट यूज़ करेंगे, और बीच में क्योंकि प्लस साइन है एक और गेट यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पे कैंड गेट और एक और गेट यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह से आप C2 भी बना लें, C3 भी बना लें और C4 भी बना लें।
ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम फॉर लुक अहेड कैरी जनरेटर। ठीक है, अब हमने लुक अहेड कैरी जनरेटर बना लिया है, तो लुक अहेड कैरी जनरेटर से हम लुक अहेड कैरी एडर भी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। ठीक है, तो वो सारे हमने C1, C2, C3, C4 यहाँ हमारे इस डायग्राम में हमने यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने C1, C2, C3, C4 यूज़ कर लिए हैं। तो ये हमारा जो C0 है, दिस इज़ इनपुट कैरी एंड दिस इज़ आउटपुट कैरी। ठीक है, और यहाँ पे हम जो भी यूज़ कर रहे थे टर्म्स G0, P0, G1, P1, G2, P2, G3, P3, हम उनको इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, हमारा जो हाफ एडर का स्टार्टिंग वाला सर्किट, फुल एडर का जो स्टार्टिंग का जो सर्किट है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे ए और बी इनपुट अप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमने ए और बी को लिया, एक कैंड गेट यूज़ कर रहे हैं और एक एक्सऑर गेट यूज़ कर रहे हैं। एक्सऑर गेट का आउटपुट हम क्योंकि कैरी प्रोपेगेट बोलते थे, इसलिए हमने उसको लिखा P0, और एंड गेट के आउटपुट को हम कैरी जनरेट बोलते थे, इसलिए हमने इसको लिखा G0। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे G0, P0, G1, P1 हमने ये सब ले लिए हैं, कैरी ले लिए हैं। ठीक है, और जैसे हम हमारे फुल एडर में हम क्या करते हैं, फुल एडर में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी पहले वाले एक्सऑर गेट का आउटपुट होता है उसको हम तीसरे इनपुट के साथ क्या कराते हैं, हम एक्सऑर कराते हैं, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिफरेंट S0, S1, S2, S3 यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। So this is all about the look ahead carry adder.